جی آواز ٹھیک ہے آپ کی. ٹھیک ہے میم. السلام علیکم. آج ہمارے ساتھ ایک بہت ہی آنریبل گیسٹ ہیں جن کا نام ہے گلتھانہ منشا. میم کین یو انٹروڈیوس یور سیلف؟ اوکے، السلام علیکم عمار، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ وعلیکم السلام. اللہ کا شکر. اچھا جی عمار، دس از گلسانہ منشا، اور انٹروڈیوس کرنے کے لیے میرے پاس کچھ بہت زیادہ تو نہیں ہے کیونکہ ابھی بہت کچھ کرنا باقی ہے لیکن یس، آئی ایم این ایجوکیشنسٹ. کوئی نیئرلی 22 ایئرس سے میں آئی ایم اٹیچڈ ود دی فیلڈ آف ایجوکیشن. And along with education, yes, I'm a motivational speaker. موٹیویشنل اسپیکر کے ساتھ اب لوگوں نے مجھے ایک نیا ٹائٹل دے دیا ہے ٹرانسفارمیشن کوچ کا، اور یہ میرے آڈینس نے مجھے یہ ٹائٹل دیا ہے کیونکہ ان کا یہ ماننا ہے کہ شاید میری بات سننے کے بعد وہ کچھ ٹرانسفارمیشنز جو ہیں وہ کر پا رہے ہیں اپنی لائف میں، اپنی سوچ میں، اور کچھ اس طرح سے. ایجوکیشن کی فیلڈ کے اندر زیادہ تر میں نے ٹیچنگ کی ہے، ٹیچنگ کو میں نے کبھی بھی نہیں چھوڑا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یس، ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس کی ایونٹ مینجمنٹ پرنسپل ہیڈ رہی ہوں ایک کیمپس کی کافی سال تک، اور کریکولم کو ڈیزائن کرنے میں، کریکولم کے بیچ میں امینڈمنٹس کرنے میں کافی کام کیا ہے میں نے، اور باقی بس یہ چھوٹے موٹے کام کرتی رہتی ہوں زندگی میں. تو دیٹس آل اباؤٹ می. میم کون سی کلاس کا آپ نے کیریئر جو ہے وہ ڈیزائن کیا؟ کون سی کلاس کا کیریئر جو آپ نے کریکولم جو ہے وہ چینج کیا یا امینڈمنٹ کرنے کی کوشش کیا آپ نے؟ اچھا عمار، ہمارے جس اسکول سسٹم کے ساتھ میں اٹیچ رہی زیادہ دیر، ان کا یہ تھا کہ ان کے کریکولمس آیا کرتے تھے امریکہ سے. ایگزیکٹلی جو بکس امریکہ میں پڑھائی جا رہی تھی آکسفورڈ وغیرہ؟ وہی بکس نہیں، آکسفورڈ نہیں، میں نام نہیں لے سکتی، ان کی کچھ پرائیویسی پالیسیز ہیں تو ان کو میں ڈیفینیٹلی آئی ریسپیکٹ دیٹ. تو میں یہ کیا کرتی تھی، ہم یہ کیا کرتے تھے، ہماری جو پوری کریکولم ٹیم ہوتی تھی ہیڈ آفس کے اوپر ہم بیٹھ کے، تو چونکہ وہ اسٹریٹ امریکن سلیبسز تھے تو ہمیں ان کو کچھ تھوڑا سا اس کے بیچ میں امینڈمنٹس کرنی پڑتی تھیں. ظاہری بات ہے کلچر ڈفرینس، ریلیجس ڈفرینس ہونے کی وجہ سے ہمیں بہت زیادہ اس کے بیچ میں کرنا پڑتا تھا. سیکنڈلی ان کا جو لینگویج اسٹینڈرڈ تھا وہ تو فرسٹ لینگویج لرنرز کے لیے تھا، اور جبکہ وہ کریکولمس جب پاکستان میں ہم ان کو امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کرتے تھے تو ہمارے یہاں بچے سیکنڈ لینگویج لرنرز تھے. تو سیکنڈ لینگویج لرنرز بھی نہیں، میں پاکستان کے بچوں کو تھرڈ لینگویج لرنرز کہتی ہوں وین اٹ کمز ٹو اینی فارن لینگویج، ویدر اٹس انگلش اور چائنیز اور جاپنیز اور ڈچ، واٹ ایور یو کال اٹ. تو اس کو پھر ہم سارا کا سارا جیسے ایک دوبارہ سے ہم اس کو ایزی ورژن میں لے کر آتے تھے، اور ٹیچرز کے لیے بھی ایکولی وہ چیلنجنگ تھا کہ ان سلیبسز کو پڑھانا. ٹیچرز کے لیے بھی ان پہ ایک تو ہم ٹرین کیا کرتے تھے کہ ان سلیبسز کو ٹیچ کیسے کرنا ہے، ریمیننگ ایٹ دی ہیڈ آفس، بینگ دی کریکولم انچارج آف انگلش ڈپارٹمنٹ. تو ڈیفینیٹلی ان کے لیے اسٹریٹجیز ہم ڈیزائن کیا کرتے تھے، اور سب سے امپورٹنٹ ہم ان کے لیے اسٹڈی گائیڈس، بکس باقاعدہ ریڈی کیا کرتے تھے، جن بکس کی ہیلپ لے کے ایز ریسورس ہم ٹیچر کو دے دیتے تھے کہ دس از دا ٹیچرز گائیڈ، یوز دس بک whenever you are teaching this particular science book or social studies book or you know. اس طرح سے ہم نے اس کریکولم کو فرام امریکن اسٹینڈرڈس ہم ان کو پاکستان کی، ظاہری بات ہے ہم لوگوں کی جو بیک گراؤنڈ اور لیولز تھے وہ اس طرح سے میچ نہیں کرتے تھے جو امریکن ٹیچرز کے، اور ریجن بھی آف کورس بہت ریموٹ ریجن ہے ابھی ہمارا، ہم بہت پیچھے کھڑے ہوئے ہیں. تو کوئی ایک برجنگ کا کام جسے ہم کہتے ہیں کہ امریکن سلیبس کو برنگنگ اٹ ٹو دی پاکستانی ٹیچرز اینڈ اسٹوڈنٹس لیول، وی یوز ٹو میک امینڈمنٹس ان دیٹ اینڈ پریپیئر اسٹڈی گائیڈز اینڈ ریسورسز فار دی اسٹوڈنٹس. یس میم جیسے کہ آپ نے بتایا کہ آپ جو ہے وہ بھی امینڈمنٹ کر رہی ہیں اس کے کورس آؤٹ لائن میں، تو اس کے علاوہ ہماری یہاں پہ دو طرح کے سسٹمس ہیں. ایک او اے لیولس کا سسٹم ہے، اس کے علاوہ ایک ہمارا گورنمنٹ کا سسٹم ہے. اور اگر گورنمنٹ کا سسٹم دیکھا جائے تو ہماری جو بکس ہیں وہ کافی زیادہ آؤٹ ڈیٹڈ ہیں، اسپیشلی جو کمپیوٹر سائنس کی بکس دیکھ لیں یا اور سبجیکٹس دیکھ لیں. تو ان بکس کو آپ کرنٹ جو پیس جا رہی ہے اس کے ساتھ کرنے کے لیے
क्या मतलब किया जा सकता है और किस लेवल पे किया जा सकता है? और क्या आप आने वाले दिनों में देख रही हैं कि कुछ इसमें चेंजेस आएगा? जैसे दुनिया जो है वो बहुत एडवांस हो रही है, लेकिन हम आज भी जो है वो 1960s की प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जो है वो पढ़ रहे हैं। जी, बिल्कुल। अच्छा अमार, जहाँ तक अमेंडमेंट्स का ताल्लुक है और आपने इसको डिवाइड कर दिया इंग्लिश मीडियम स्कूल्स में या हाई क्लास स्कूल्स में या ओए लेवल सिस्टम्स के साथ गवर्नमेंट के जो मैट्रिकुलेशन सिस्टम है, उसके साथ मुझे लगता है कि इन अमेंडमेंट्स की ज़रूरत जो है वो दोनों स्ट्रीमलाइंस में है। It's not only the Pakistani matriculation system, it's even in O and A levels. You need to make these amendments because right now, if I look at the academia and curriculums which we are teaching in our schools, whether they are the high class schools, whether they are the middle class schools, or whether they are the public schools or government sector, तो बिल्कुल सबके सिलेबसेस जो हैं वो आउटडेटेड हैं। किस तरह से आउटडेटेड हैं? अब देखें, अभी आपने खुद ही एक जिक्र किया कि इस वक्त जो दुनिया है वो जारी है टोटल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ, ठीक है? एआई पे जा रही है। बिल्कुल एआई इरा के बीच में इस वक्त आप मूव कर रहे हैं, एंटर नहीं हो रहे, मूव कर गए हुए हैं। जो फॉरेन कंट्रीज हैं वो तो बिल्कुल उसके अंदर इस वक्त दरमियान में डूबे पड़े हैं। हम अभी स्टार्टिंग स्टेजेस के ऊपर हैं, तो स्टार्टिंग स्टेजेस को भी, इनिशियल स्टेजेस को भी अगर मैं देखूं करिकुलम की, तो हमारी करिकुलम को टोटल रीडिजाइनिंग की ज़रूरत है, इस तरह से कि जो आपका रिटन रिसोर्स है जिसको आप थ्योरी बोलते हैं, उस थ्योरी के बीच में हार्डली 30% थ्योरी आपके काम आएगी। उसके बाद आपके करिकुलम के बीच में 70% जो चीज़ें ऐड करने की ज़रूरत है, उसका कम्प्लीटली इट इज़ कनेक्टेड टू the artificial intelligence apps, artificial intelligence resources, artificial intelligent gadgets, जितने भी मतलब वो हैं। तो प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग को आपको अपने करिकुलम का हिस्सा बनाना पड़ेगा। एक स्किल बेस्ड लर्निंग को, स्किल बेस्ड करिकुलम को, चीज़ों को आपको अपने करिकुलम का हिस्सा बनाना पड़ेगा और इन दोनों को 70% का वेटेज देना पड़ेगा। फिर उस करिकुलम को टेस्ट करने के लिए आपको अपना एग्जामिनेशन स्टाइल भी टोटल चेंज करना पड़ेगा इफ यू वांट टू मीट द नीड्स ऑफ द 2023 ईयर और आई मीन 2030 मैं तो कहूँगी, क्योंकि आज जो बच्चा आपका करिकुलम पढ़ रहा है इस वाले को, उसको जाके जो परफॉर्मेंस देनी है, उसको जाके जो प्रैक्टिकल लाइफ में एंटर होना है, वो उसने एंटर हो जाना है तकरीबन 20-30-35 वाले ईयर्स के बीच में जाके। तो आने वाले 5 सालों में तो एक बहुत बड़ा समुद्र के अंदर छल आने वाला है। वो आ चुका हुआ है, उसकी लहरें अब तक हम तक भी आ गई हुई हैं, लेकिन अगर हम उसकी डेप्थ के अंदर नहीं जाएंगे और उसकी नीड्स को पूरा नहीं करेंगे तो फिर ज़रा मुश्किल हो जाएगा हमारे। ठीक है मैम, आप यूथ एम्पावरमेंट के बारे में कुछ बताना चाहेंगे कि हम अपनी जो यूथ है आजकल जो बेरोजगारी की वजह से, अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से काफ़ी ज़्यादा डिप्रेशन में है, तो इस यूथ को हम कैसे एम्पावर कर सकते हैं और डिप्रेशन से कैसे निकाल सकते हैं, और यूथ का अपनी जो मुल्क की एक पॉजिटिव इमेज में या उस मुल्क की कंट्रीब्यूशन में किस तरह से लेके आ सकते हैं? अच्छा देखो, अभी अमार हमने बात की करिकुलम की। जानते हो कि हमारा यूथ जब प्रैक्टिकल लाइफ के बीच में आता है तो वो क्यों ठीक से परफॉर्म नहीं कर पाता, क्यों उनको जॉब्स नहीं मिलती? इसलिए कि उनके हाथ में सिर्फ एक कागज का टुकड़ा आ जाता है, विच इज कॉल्ड द डिग्री। इस वक्त जो मेरी लेटेस्ट ऑब्जर्वेशंस और रिसर्च है वो मुझे ये बता रही है कि अब जब कंपनीज आपको हायर करती हैं तो वो आपकी स्किल को, वो कहते हैं हमने इस कागज के टुकड़े का क्या करना है, आप हमें ये बताएं कि आज अगर हम आपको हायर करते हैं तो आप प्रैक्टिकली हमारी फर्म को या हमारे इंस्टीट्यूट को ऊपर ले जाने में या उसकी प्रोग्रेस के बीच में क्या प्रैक्टिकल कॉन्ट्रीब्यूशंस दे सकते हैं। अब ये बच्चे जिन्होंने एमएस किया है, ग्रेजुएशन किया है, ये तो बेचारे अभी सीधे सीधे किताबों से निकले, डिग्री पकड़ी हाथ में और वो डिग्री लेके वो चले गए उधर। अब ट्रेनिंग इन अ पर्टिकुलर फील्ड, या तो अभी जैसे हमने बात की कि जो रीडिजाइनिंग की जरूरत है वो सिर्फ करिकुलम को नहीं है, वो रीडिजाइनिंग की जरूरत ये भी है कि आप बाहर के कंट्रीज में देखते हो कि जैसे फर्स्ट करो एक बच्चे ने बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन करनी है तो वो स्कूल्स ही उन्होंने अलग कर दिए हैं। बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में अगर आपने एडमिशन लेना है और अगर आप कनेक्टिकट में रह रहे हैं और कनेक्टिकट के बीच में जो है वो
बिजनेस स्कूल कोई नहीं है, तो आपको न्यूयॉर्क सिटी की यूनिवर्सिटी में जाके एडमिशन लेना पड़ता है, क्योंकि वो बहुत छोटी एज से फिर वो हाई स्कूल के फौरन बाद वो आपको ले जाते हैं इनटू दैट पर्टिकुलर फील्ड। फिर आप उस फील्ड से रिलेटेड प्रोजेक्ट्स करते हैं, फिर उस फील्ड से रिलेटेड आपको इंटर्नशिप्स कराई जाती हैं। अब पाकिस्तान के बीच में भी वैसे इंटर्नशिप्स वगैरह हो रही हैं, बच्चे खुद इनिशिएटिव्स ले रहे हैं इस बारे में, लेकिन द नंबर ऑफ पीपल और द नंबर ऑफ यूथ इज वेरी लेस। सो नंबर वन, वी नीड टू बेसिकली bring them into practicality of a particular field which they have decided to choose for their future. From a very young age, right after high school, they need to go into that. Number two, फिर जब प्रैक्टिकल लाइफ में बच्चे आ भी जाते हैं, अब पता क्या हो रहा है, वो ये रहा है कि बच्चे अपने ओन पे जितनी भी स्ट्रगल्स कर रहे हैं वो कर रहे हैं, क्योंकि वो जो बड़े हैं ना हमारे, वो जो मेरी उम्र के लोग हैं, वो ना तो अपनी कुर्सियां छोड़ने को तैयार है, ना वो आने वाले बच्चों को जगह नहीं दे रहे। अब स्कूल ने भी कोई प्रैक्टिकल एजुकेशन स्किल नहीं सिखाया, प्रोजेक्ट करना नहीं सिखाया, प्रेजेंटेशन देना नहीं सिखाई, फील्ड के बीच में काम करना नहीं सिखाया। तो जो इधर लोग ऊपर बैठे हैं वो भी, उनको चाहिए कि वो अपनी जगहों को एज वर्कर्स काम करने की बजाय वो मेंटरशिप में आए और बच्चों को वर्कर्स, जो यूथ आ रही है उनको वर्कर्स बनाए। अब यहाँ पे काया उल्टी चल गई। बच्चे क्या कर रहे हैं, अभी मैं तुम्हारे साथ रिसेंटली एक वाकया शेयर करती हूँ जिससे तुम्हें सारी बात अमार आपको समझ आ जाएगी। रिसेंटली क्योंकि मैं मीडिया के अंदर काफ़ी ज़्यादा अब एक्टिव हुई, तो मुझे कुछ लड़कियां और लड़के नजर आए जिनको बड़े प्लेटफॉर्म्स के ऊपर उनको बुलाया जा रहा है और उनके नाम के साथ लिखा हुआ है, पेजेस क्या है 23, 24, 25, 26 और टाइटल्स क्या लगे हुए उनके नामों के साथ, ट्रेनर्स हैं। 26 साल की लड़की क्या ट्रेनिंग करेगी आपको तो बताओ, जिसका अपना एक्सपीरियंस ही कुछ नहीं। 24 में अगर वो MS करके निकली है तो 2 साल में का एक्सपीरियंस क्या आपको काफी है कि आप आगे किसी की मेंटरशिप कर सकें? अच्छा, फिर मुझे लगा कि नहीं, मैं शायद किसी को अंडर एस्टिमेट कर रही हूँ, कुछ बच्चे सेल्फ लर्निंग की तरफ जाते हैं। मैंने क्या किया कि उन यंगस्टर्स की जो ट्रेनिंग सेशंस थे, मैंने उनको, जारी बात है इस वक्त तो आप एक नाम टाइप करें और जहां से मर्जी उनका काम निकाल के आप देखना शुरू कर दें, हालांकि मैं उन लोगों को जानती भी नहीं। मैंने उनका काम खोल खोल के ना देखना शुरू किया बैठ के। कुछ 7-8 दिन मैंने अपना होमवर्क किया, और जब मैंने उन लड़कियों की और उन लड़कों की वो वर्कशॉप्स देखी जो वो अपनी तरफ से ट्रेनर्स की, यू नो व्हाट इट वाज, स्लाइड शेयर से भरा हुआ, वो हाथ में रिमोट पकड़ा हुआ, एक फैंसी सा लैपटॉप पकड़ा हुआ, और जी लाइटें ऑन है और 60 की ऑडियंस कहीं से इकट्ठी की हुई है, और क्या चल रहा है कि जी ये मल्टीमीडिया और उसके ऊपर धड़ाधड़ स्लाइड्स आ रही हैं। अब ये यूथ क्या कर रहा है, वो थ्योरी जो किताबों में या गूगल पे पड़ी हुई है उनको सिर्फ टाइप कर रहे स्लाइड शेयर्स के ऊपर, और उन स्लाइड शेयर्स को पढ़ते जा रहे हैं, ये लो जी 40 मिनट की आपकी ट्रेनिंग हमने कर दी। तो एक ऑनेस्ट टू गॉड अमार, मैनू कख समझ नहीं आई जड़ी वो ट्रेनिंग्स मैं खोल के देखियां कि इफ आफ्टर लुकिंग एट दोस ट्रेनिंग सेशंस आई कुड अटेन एनीथिंग। नाउ the setup should be the people who are seniors, they should now take the responsibilities of mentorship, और इनकी मेंटरशिप के नीचे उस यूथ को रखें और उनको स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4, स्टेज 5 और 10th स्टेज तक आप आहिस्ता लेके जाएं। अब जब ये यंग ट्रेनर्स आ गए तो वो जी अब हम फ्यूचर को कर रहे हैं, और कभी किसी नाम से फ्यूचर का वर्ड लगा के, तो जी अब हम ये वाला फेस्ट कर रहे हैं, तो अब हम वो कर रहे हैं, तो अब हम ये कर रहे हैं, और ये हो रहा है और वो हो रहा है। सारे यंगस्टर्स को घुसेड़ा हुआ और सब ट्रेनर्स बने हुए हैं, साडा पला हो जाए। अब कहाँ से तुम मुझे बताओ कि यूथ एम्पावरमेंट इसको बोलते हैं? तो पाकिस्तान मजीद खराबी की तरफ जाएगा अगर इतनी कम एज के लोगों को आपने मेंटरशिप्स और ट्रेनर्स बना के प्रेजेंट कर दिया। अच्छा मैम, यहाँ पे मेरा एक और सवाल है कि जैसे आपने बताया कि आजकल जो है 2 साल की उनकी ट्रेनिंग होती है और वो मेंटोरशिप स्टार्ट कर देते हैं, तो अब इस सारे सिनेरियो में एक बंदा जो न्यू है, जो एक मेंटोर को गेन करना चाह रहा है, तो वो क्या किस नज़र से जो है वो क्या क्या क्वालिटीज़ देखे और किस तरह से एक अच्छा मेंटोर फाइंड आउट करे और उससे किस तरह से जो है वो गाइडेंस सीख करे? हमारे सबसे पहले जो अच्छा मेंटर होगा ना, उसकी मतलब मैं मेंटर की अगर डेफिनेशंस आपको दूं
तो it is somebody who opens the door for you, who says no to no and who says yes to you all the time. अगर आपका जो मेंटोर है वो आपको अपना टाइम देने के लिए, अपना नॉलेज आपके साथ शेयर करने के लिए, अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करने के लिए तैयार है, और उसके बाद आपके लिए अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करने को तैयार है, आपके लिए आर्टिफिशियल सर्कमस्टेंसेस क्रिएट करने को तैयार है, जहां वो प्रैक्टिकल चीजें आपको करवाएगा अपनी गाइडलाइन, अपनी कस्टडी के अंदर. अब जो यंगस्टर्स हैं वो एक तो ये पहचाने, और ऐसे लोग भी बहुत कम मिलेंगे. मेरे साथ मेरे कोलीग्स, मेरे जो लोग मेरे साथ काम कर रहे हैं, या जितने भी लोगों को मैं देख रही हूँ कि वो इस तरह से काम कर रहे हैं, वो ये कहते हैं कि जो सीनियर्स हैं वो अपना नॉलेज अपने साथ हमारे साथ शेयर करने से इतना घबराते हैं कि कहीं ये हमसे आगे ना निकल जाए. तो बड़ों को अपनी सोच बदलनी है, छोटों को, अच्छा अब छोटे भी क्या कर रहे हैं, जो यूथ है वो क्या कर रही है. उन्होंने 4 जमातें जब पढ़ ली ना और डिग्री ले ली, तो वो ये समझते हैं कि बस ये जो बड़े हैं ना ये कुछ भी नहीं है. अमार, एक बात मेरी जिंदगी में याद रखो, इस यूथ को ये समझना पड़ेगा, जब आप किसी को रिस्पेक्ट देंगे तो आपको रिस्पेक्ट मिलेगी. आप उनके एक्सपीरियंस को एक्सेप्ट करें, अप्रिशिएट करें, बीइंग यंगस्टर्स, और अडॉप्ट करें. 5 A's का फॉर्मूला मैं इसको पूरी दुनिया में फैला रही हूँ, फिर खुदा का वास्ता इन 5 A's को पकड़ लो, तुम लोग प्रोफेशनल लाइफ में सुखी हो जाओगे. एंड दैट इज A number 1, acceptance. The mentors accept the youth and the youth accept the mentors. ठीक है, दोनों पे अप्लाई होगा. एक्सेप्टेंस, फिर अप्रिसिएशन, कि जितना उस बच्चे को आता है आप उसको अप्रिशिएट करें, और जितना आपके मेंटोर को आता है, देखें ये 2 वे चलना पड़ेगा, ये किसी एक के करने से नहीं होगा. और उसके बाद जब आपने एक्सेप्ट भी कर लिया, आपने अप्रिशिएट भी किया, फिर आप उनकी आइडियोलॉजीज को अडॉप्ट करें. अडॉप्ट करने का मतलब है अप्लाई करते हुए एक्सपीरियंसेस को अपनी जिंदगी में शामिल करें. और जब आपका एप्लीकेशन हो रही है, साथ साथ A number 4, एनालिसिस. अब अल्लाह ने आपके मेंटोर का एक्सपीरियंस भी आ गया, नॉलेज भी आ गया, प्रैक्टिकल भी उसने आपको दे दिया. अब एक इंटेलिजेंस है जो अल्लाह ने आपको नवाजी है. आपने अपने एनालिसिस के दौरान अपनी इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करना है, क्योंकि आपका मेंटर आज से 30 इयर्स पहले का क्वालिफाइड है और आप आज के बच्चे हैं. आपने उनके एक्सपीरियंस, उनके नॉलेज, उनकी ट्रेनिंग को bring it at par to 2023 and see how you can innovate it, how you can use your creative mind to bring in creativity and make it utilizable for the needs of 20s or 30s. ठीक है, रिस्पेक्ट करें, उनके साथ जुड़ के काम करते रहें, और 2 साल के बाद ये मत समझ लें that you are the master of all jacks. No, प्लीज अपने पैसे बनाने के लिए और ये अपने जिसे कहते हैं डेजिग्नेशंस और अपने सीवी को इम्प्रूव करने के लिए आप एकदम से उसमें मत आए. क्यों? क्योंकि जब बच्चे, जो आज की यूथ है वो ये शॉर्टकट लगा रही है. आज की यूथ को अगर हमने एम्पावर करना है तो यूथ को ये समझना होगा कि शॉर्टकट्स की लाइफ बहुत शॉर्ट होती है. They're not, the results are going to be temporary. आपको वक्ती तौर पे 4 टीवी चैनल्स बुला के बिठा देंगे जहां आपको बात नहीं करनी आ रही यार, आप बात नहीं, आप कम्युनिकेट नहीं कर रहे. और 3 दिन के बाद मैंने देखा कि एक पोस्टर मेरे FB के ऊपर, जाहिर बात है दुनिया इतनी छोटी सी है, एक पोस्टर अपीयर हुआ, मुझे पता लगा कि वो लड़की कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर बात करने जा रही है, किसी पैनल का हिस्सा बनी हुई है. और 3 दिन हुए थे एक टीवी चैनल के ऊपर, मैंने उनको एक छोटे से प्रोमो के बीच में बात करते हुए देखा. शी कुड नॉट. So this is the mistake that the youth is making on their own. Over confidence का शिकार है हमारी यूथ. तो यूथ को ये प्रॉब्लम आ रही है. और मेंटर्स, जहां यूथ ओवर कॉन्फिडेंस का शिकार है, वहां पे आपके जो मेंटर्स, जो सीनियर सिटीजन्स हैं, वो स्टबर्ननेस का शिकार है. हम इतने ढीठ हैं कि हम अपने माइंडसेट को चेंज नहीं करना चाहते. मुझे सब पूछते हैं कि बच्चे और आज का यूथ आपके साथ क्यों इतना खुश है. मैंने कहा इसलिए कि मैं अगर कोई सेशन कंडक्ट कर रही हूँ तो मैं वहाँ
जैसे ये मीडिया के ऊपर मैं उस्तानी बनी होती हूँ, वहां पे मैं उस्तानी नहीं बनी होती, वहां पे उनको मैं ये फीलिंग दे रही होती हूँ कि बच्चे आज आपने मुझे सिखाना है, मुझे बताओ आज मैं आपसे क्या सीख के जाऊँ। तो जब मैं उनको उनकी जगह दूंगी और जब वो मुझे सिखा रहे होते हैं, मुझे पता होता है कि यहाँ क्या एड ऑन करना है, यहाँ क्या ऊपर मैंने रख के इनके बात करनी है कि ये कि ओ ये मैम को बात पता थी, ये हमें नहीं पता था। तो आपको उनसे भी ज्यादा स्मार्ट चलना है, उनके ग्राउंड लेवल के ऊपर जाके आपने उनको बताना है कि मैं तुमसे भी छोटी हूँ। मुझे मेरे फ्रेंड्स, मुझे मेरे स्टूडेंट्स ये कहते हैं आप तो बिल्कुल टीनेजर्स की तरह बिहेव करती हैं। मैंने कहा बिल्कुल, इसलिए कि मुझे तो कुछ भी नहीं पता, सब कुछ आपको पता है, बताओ मुझे क्या करोगे। Teach them the art of learning, teach them the art of questioning. देखो अमार, हमारा आज का यूथ टिपिकल क्वेश्चंस के ऊपर अपनी ना करियर को वो बनाई जा रहा है, वो अपने आप से भी नहीं सवाल करता, और फिर जब आपके मेंटोर्स आते हैं वो आप उनसे भी क्वेश्चन नहीं करते, सिर्फ बताएं ना ये क्या, और अगर करते तो मेंटोर्स जो है वो आपको ये कह के स्नैप डाउन कर देते हैं कि क्या मेरा दिमाग ही खाली है, तुम तो मेरा दिमाग ही चाट के हो, तुम तो बहुत ही नालायक, तुम तो बहुत नालायक हो। तो जब बच्चे फिर सिर्फ सेल्फ लर्निंग की तरफ जाएंगे तो वहां फिर यही होगा, ओवर कॉन्फिडेंस का शिकार कि मैंने तो कल रात आपसे आप मुझे 3 बातें बता रहे थे, ये देखें मैं पूरी ट्रेनिंग डिजाइन करके ले आई हूँ, मेरे पास 12 स्लाइडें मौजूद हैं। अब उस बच्ची को या उस बच्चे को ये नहीं पता कि इन स्लाइड्स को प्रेजेंट किस तरह करना है। सिर्फ वो अच्छा सा कोट पहना हुआ है, अच्छी सी ड्रेसिंग की हुई है, यंग के यंग है हम, लैपटॉप हमने पकड़ा हुआ है, और चूंकि हमें वो रिमोट से चलानी आती है स्लाइड शेयर, तो आप ट्रेनर, और इम्प्रेस होने वालों के ऊपर तो उफ है। जो इम्प्रेस हो रहे हैं और आगे से प्रमोट कर रहे हैं इस तरह की चीजों को, भाई आप अगर किसी को प्रमोट कर रहे हैं तो कम से कम अपना होमवर्क कंप्लीट कीजिए कि क्या अभी ये बच्चा, और मैं ये नहीं कह रही कि बच्चों को प्रमोट नहीं करें, मेरे से ज्यादा इस वक्त बच्चों को प्रमोट करने के फेवर में दुनिया पाकिस्तान के बीच में आपको कोई बंदी नहीं मिलेगी या बंदा नहीं मिलेगा जितना मैं प्रमोशन दे रही हूँ बच्चों को। लेकिन मुझे ये भी देखना है कि अगर आज इस बच्चे को मैं इस कैमरे के सामने बिठाने लगी तो मेरा इमेज जाना है पाकिस्तान का कि कहां कहां तक, मेरे बच्चे को वॉच किया जाना है। आप देखें कि इंडिया के जो आप टीवी शोज देखते हैं जो कि टैलेंट शोज होते हैं, उनके जब ऑडिशन हो रही होती है तो हजारों की तादाद में ऑडिशंस देने के लिए बच्चे आते हैं, लेकिन वो प्रेजेंटेशन का हिस्से किसके लेकर आते हैं, वो मेजर प्लेटफॉर्म पे किसको लाते हैं। जब फिर वो बच्चे आते हैं ना और वो गाते हैं तो ऐसे लगता है ये उस्तादों के भी उस्ताद है। तो आपका कम से कम आप जो बच्चे अभी आपको लगता है कि नहीं इस काबिल, उनको आप बताएं कि आप हमारी लिस्ट पे जरूर आ गए हैं, लेकिन आप अभी और काम करें अपने स्किल्स के ऊपर, आप अभी और प्रोजेक्ट्स करें होम ग्राउंड के ऊपर। अभी आपको हम फ्रंट ग्राउंड नहीं दे सकते। अब ऐसा तो नहीं होता कि जो क्रिकेट खेलने आया है वो पहले ही दिन नेशनल टीम का हिस्सा बन के चला जाएगा। तो हमारी यूथ ये कर रही है कि वो पहले दिन जब क्रिकेट ग्राउंड में उतर रही है वो नेशनल मैच खेल रही है, इंटरनेशनल मैचेस खेलने की कोशिश कर रही है। तो ये जो है ये हमें करना पड़ेगा। अब मैं आपको अपनी एक एग्जांपल देती हूँ कि मैंने अभी जब स्कूल को ज्वाइन किया तो मैंने कोई 2 साल का ब्रेक लिया, मेरी कुछ हेल्थ इश्यूज आ गए थे, आज से 5 साल पहले की मैं बात बता रही हूँ। फिर मेरी जानने वाली एक है, उन्होंने मुझे बुलाया, उन्होंने कहा क्या घर बैठ गई हो, आओ वापस काम में और आके मेंटरशिप करो, ट्रेनिंग करो। मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है मैं आ जाती हूँ। अब जब मुझे हायर किया गया, अमार आप सुन के बहुत हैरान होंगे कि उससे पहले 23 इयर्स का एक्सपीरियंस सीवी 7 जगह से रिजेक्ट हुआ। क्यों? क्योंकि जैसे ही मेरा सीवी किसी प्रिंसिपल के सामने जाता था, किसी एडमिन के सामने जाता था, आपको पता है वो डायरेक्टर्स तक मेरा सीवी जाने ही नहीं देते थे, इनसिक्योर होके कि अगर ये आ गई तो हमारा क्या बनेगा। लुक एट द इनसिक्योरिटीज ऑफ पीपल, ये होगा क्या हमारे साथ, ये तो हमारी जगह ले लेगी। अब मैं जब वो मेरी दोस्त थी, शी न्यू इट कि गुलसाना की नेचर इस तरह की नहीं है, गुलसाना बहुत
अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करने वाला इंसान है दूसरे यंगस्टर्स के लिए। तो जाते ही उन्होंने मुझे कहा कि जी हम आपको ये ऑफिस दे रहे हैं, और साथ ही मेरे एक और कैंडिडेट थी। अब देखो वही गलती हुई, अब उस लड़की ने डेढ़ 2 साल इस स्कूल सिस्टम की वो सारी वो वेबसाइट्स और इसको कैसे चलाते हैं, इसको कैसे करते हैं, वो ना सारा उसने कहीं से वो गुर सीख लिया हुआ, और उसने वो जो इन्फ्लुएंस अपना देना था, टेम्परेरी इन्फ्लुएंस, वो दे पाई। मैंने कहा अगर आपको लगता है कि ये लड़की एलिजिबल है तो लाइन, चले लाइन, फील्ड के अंदर लाइन। मैंने अपनी जगह छोड़ी। अब हुआ क्या कि जैसे ही मैंने अपनी जगह छोड़ी, अब स्कूल को चलाना, 4 कंप्यूटर वेबसाइट्स को जानना सिर्फ स्कूल चलाने के लिए काफी नहीं है, इसके लिए आपके एक्सपीरियंस, बहुत बड़ी दुनिया है स्कूलिंग, बड़ा चैलेंजिंग काम है, और उस बच्ची को पता ही नहीं था। और फिर वही गड़बड़ें होना शुरू हुई, और फिर एक वक्त आया कि जी इधर से करो उधर से करो, और फिर क्या हुआ कि आखिर उन्होंने पूरी टीम इनकॉम्पिटेंट डिक्लेयर होकर ट्रांसफर्स हुई, निकाला लोगों को, पूरी मैनेजमेंट चेंज हो गई, कि जी स्कूल तो चल ही नहीं। तो देखिए आपका ये जो 4 उसने स्लाइडें दिखा के उस बच्ची ने मेरी जगह लेने की कोशिश की, उसके बाद वो परफॉर्मेंस नहीं दे सकती, क्योंकि उसको ये कहना चाहिए था कि मुझे इनकी मेंटरशिप के अंदर लाएं, मुझे ये कहना चाहिए था कि आप इनकी ट्रेनिंग करें। तो बात सिर्फ इतनी सी है कि ये समझना पड़ेगा दोनों साइड्स को, अगर इस गाड़ी को चलाना है तो फिर चारों पहियों को अपनी अपनी जगह पे अपनी पोजीशनिंग समझनी। देखिए जो रेयर व्हील है ना, वो रेयर व्हील का ही काम करेगा, जो फ्रंट व्हील है वो फ्रंट, अच्छा जब आप फ्रंट व्हील को रेयर व्हील की जगह वाली डेजिग्नेशन दे देंगे तो फिर गाड़ी उल्टी घूमेगी, फिर वो डोलेगा। तो ये चेंजेस लाने पड़ेंगे। और जहां तक करियर की आपने बात की, तो वो मैंने आपको बता दिया कि वो आपको स्कूल्स उस तरह से डिजाइन करने पड़ेंगे। लाहौर के अंदर तो खैर अब काफी मतलब जैसे लाहौर स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स बन गया हुआ है, लम्स है उनका एक अपनी मतलब स्पेशलिटी है, BNU है उस यूनिवर्सिटी की अपनी मतलब वो स्ट्रेंथ्स हैं, एक आर्ट का यूनिवर्सिटी है जो हमारे यहाँ बन गई हुई है, NCA है, एक और भी है। तो इस तरह से हो गई नहीं है चीजें, लेकिन टोटल इसके ऊपर काम करने की जरूरत है, क्योंकि अब ये सिर्फ 4 यूनिवर्सिटीज अपना काम नहीं करेंगी, अब हंड्रेड्स ऑफ फील्ड्स हैं। अब इस दुनिया में सिर्फ इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी, मेडिकल कॉलेजेस, नेशनल स्कूल ऑफ आर्ट्स ये काम नहीं करेगा। अब आपको वो जो 100 फील्ड्स आई हैं उनकी नीड्स को मीट करना पड़ेगा। तो फिर भी जब वो यूथ वहां से पास आउट करता है, ग्रेजुएट करता है, उसके बाद प्रैक्टिकल लाइफ के थपेड़े खाने पड़ते हैं। फिर कहीं जाके 35-40 देखें, मेरे नबी को जब मौला ने चुन लिया कि इसको मैंने डिक्लेयर करना है अपना नबी, 40 साल की एज का इंतजार किया मेरे मालिक ने। क्या नहीं दे सकते थे पहले? वो दर्जा दे सकते थे, वो डिस्क्लोज कर सकते थे उनका डेजिग्नेशन, नहीं किया। कितना बड़ा लेसन है हमारे लिए कि 40 इयर्स ऑफ एज आपकी वो एज होती है जब आप तैयार हैं किसी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को लेने के लिए और दूसरों को सिखाने के लिए। 40 साल की ट्रेनिंग हुई मेरे नबी की, तो मेरे नबी के लेवल को तो ये जितने मर्जी आगे निकल जाएं डिजिटल और ये और वो, जितनी मर्जी टर्मिनोलॉजीज और टेक्नोलॉजीज निकाल लें, उनको तो नहीं आप मैच कर सकते। या मेरे रब की आइडियोलॉजी को मैच कर सकते हैं आप? मेरा रब तो आपको सबक सिखा रहा है। तो आज का यूथ 22 साल की उम्र में अगर ट्रेनर अपने सीवी के अंदर लिख देगा, तो उस ट्रेनर को जरा मेरे सामने ला के बिठाएं, मैं उसको ये पूछूं, हाँ जी बाजी 24 साल में तो आपने MS क्लियर किया है, तो आप ट्रेनर कैसे बन गई? आप ये तो बताएं पहले, 4 स्लाइडें चला के। तो आपको ये समझना पड़ेगा, नॉट क्रिटिसाइजिंग बट आई एम जस्ट गिविंग अ रियलिटी चेक। फिर जब आप मेरे जैसे लोग जब रियलिटी चेक देते हैं तो वो कहते हैं जी ये क्रिटिसाइज करती हूँ। मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रही, आई एम गिविंग यू अ रियलिटी चेक टू द यूथ, at the same time to the mentors, to the adults, to the senior citizens as well, to the senior workers in the firms, कि please आहिस्ता आहिस्ता
अपनी जगह छोड़ें, मेंटरशिप की तरफ आएँ। और जैसे हम क्लास में एक बड़ी अच्छी स्ट्रैटेजी यूज़ करते हैं अपना हमारे जो अच्छे बच्चे होते हैं, हम उनके साथ ऐसे बच्चों को लगाते हैं जिनकी लर्निंग गैप रह जाती है। मैं ये नहीं कहूँगी कि उनका आईक्यू लेवल नहीं है, मैं इस चीज़ में बिलीव ही नहीं करती कि जी आईक्यू लेवल फ़र्क है, निकम्मा है ये वो, ना। कहीं लर्निंग गैप है। तो आप उनकी मेंटरशिप में हम फिर ले आते हैं। फिर बच्चे बच्चों से सीखते हैं, बच्चे फिर वर्कर्स कलीग से सीखते हैं। और फिर कहीं जाके आप इस काबिल होते हैं, कहीं 30s, लेट 30s, 40 के ऊपर जाके आपको पता लगेगा कि अब मैं ट्रेनर हूँ भाई, अब मुझे ट्रेनिंग करनी है। मैंने 40 इयर्स की एज तक आने तक मैंने ट्रेनिंग स्टार्ट नहीं की। हालाँकि मुझे पता था कि मैं आम लोगों से ज़रा मुख्तलिफ हूँ, मेरा लर्निंग प्रोसेस आम लोगों से फास्ट है और मेरे अपने अंदर भी कोई एक ऐसा इंसान बैठा हुआ है जिसकी ऑब्जर्वेशंस आम लोगों से ज़्यादा शार्प हैं। कुछ होते हैं बच्चे जो बाय बर्थ ऑब्जर्वेशंस में बहुत छोटी एज से उनकी ऑब्जर्वेशंस फास्ट हो जाती हैं। उसके बावजूद मुझे लोग कहते थे आप ट्रेनिंग कराना शुरू करें, आप ट्रेनिंग कराना शुरू करें। मैंने कहा जब मैंने ट्रेनिंग करवानी होगी मैं आपको खुद बताऊंगी कि नाउ आई एम एट पार, नाउ आई एम रेडी टू टेक दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी। जब मुझे ये पता है कि सामने से हमारे हेड ऑफिस के बीच में एक 26 ईयर ओल्ड गर्ल को उन्होंने हेड बना दिया। अब हम जितने सीनियर लोग थे, काफी लोगों ने, मैं तो खैर अडॉप्टेबिलिटी और एक्सेप्टेंस में मैं फौरन एक्सेप्ट कर लेती हूँ कि कोई बात नहीं, आने दो। अच्छा होता क्या था हमारा, जब भी वो कोई वर्कशॉप कंडक्ट करती थी, अब जाहिर बात है हम तो इन सारी चीजों को गुजर आए हुए थे। हमने जब जरा सा आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन करना, उसने पता है क्या आगे से हमें वो जवाब देती थी और बड़े कॉन्फिडेंस से, वेट, वो गूगल खोलती और उसका जवाब, क्या का वास्ता है यार, क्या कर रहे हो आप? आपने दूसरे बंदे की डेजिग्नेशन को भी मारा। और इन्फ्लुएंसर्स को देखो, अच्छा कोई ऐसा कमाल है आज के लोगों के पास कि वो इतने बुरे तरीके से अपना इन्फ्लुएंस आपके ऊपर डालते हैं कि आप ना जैसे ट्रॉमेटाइज हो जाते हैं और मेस्मराइज हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि अपनी क्रिटिकल थिंकिंग से काम ही नहीं ले रहे। वो नए नए चेहरे अच्छे लगते हैं, वो यंग यंग यूथ अच्छा लग रहा होता है, तो ठीक है। फिर अगर आपने भी सोच लिया हुआ है कि आपने इस सिस्टम का चक्कर उल्टा ही चलाना है, तो फिर यही होगा ये जो यूथ के साथ हो रहा है। फिर यूथ भी फिर एक होपलेसनेस की तरफ जा रहा है। और देख लो यही वजह है, तो आपने तो मुझे कहा कि यूथ जो है वो हमारा परफॉर्म नहीं कर पा रहा, क्योंकि यूथ जिस अंदाज में परफॉर्म करने की कोशिश कर रहा है वो अभी उनका काम नहीं है। एग्जैक्टली। ठीक है मैम, सो नाइस ऑफ यू, आपने ज्वाइन किया और अपना कीमती वक्त निकाला, बहुत शुक्रिया मैम। थैंक यू अमार, आपने मुझे इस काबिल समझा कि मैं कुछ डायरेक्शंस, मैं अगेन कहूँगी कि प्लीज़ इसको एक लर्निंग एक्सपीरियंस की तरह लीजिए, मेरी बात को समझिए। एक चीज़ होती है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, एग्जैक्टली। चीज़ों की तरतीब, और उसके जो क्लू वर्ड्स होते हैं जो हम सिखाते हैं बच्चों को, वो ये होते हैं कि फर्स्ट, नेक्स्ट, आफ्टर दैट, लेटर ऑन, एट द एंड। तो आप इस क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के तहत अपनी ग्रूमिंग कीजिए, अपने लर्निंग प्रोसेस को मैच्योर कीजिए, और फिर जो है उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज को ऑनेस्टी के साथ, अपने आप को ऑनेस्टली रात को बैठ के पूछें कि क्या ये जो कल मैं करने जा रही हूँ, क्या मैं इसके लिए पूरी तरह तैयार हूँ, या मुझे हर जवाब के लिए कोई स्लाइड खोलनी पड़ेगी या गूगल को खोलना पड़ेगा। तो पहले अपने आप को अपने ऊपर होमवर्क कीजिए, और जब आपका होमवर्क कंप्लीट हो गया है फिर आइए मैदान में उस डेजिग्नेशन के ऊपर। तब तक मैदान में एज ए लर्नर अपना कंट्रीब्यूशन, अपनी पार्टिसिपेशन दीजिए। एग्जैक्टली। थैंक यू मैम, थैंक सो नाइस ऑफ यू। अल्लाह यू। हाफिज़। अल्लाह हाफिज।